So once again, good morning, dear friends. Or now I am presenting the screen, and today's topic is once again the very important topic, and this is a repetition for 12th F students और जिनको थोड़ा कम समझ में आया होगा क्लास में. It is a added advantage for them that they can understand it further. And 12th D students, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. आप लोग आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अपना विचार रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं. हम एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. जैसा कि सर्वविदित है, आप जानते हैं कि हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग को एस्टिमेट करने के तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं. एज यू नो डियर फ्रेंड्स, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, टू नो द methods of calculating national income. So far we have discussed that there are three methods to calculate national income which comes under national income accounting. These three methods are value added or product method, income method, and expenditure method. So far we have discussed about the various concepts which are required to measure the national income. For example, final goods, intermediate goods, consumption goods, capital goods, stock, flow, investment, gross investment, depreciation, etc. etc. Today, the topic which we are trying to cover is such an important topic that each and every 12th class examination, one or the other way, the questions are asked. Few days back, there was a pre-board examination for outgoing batch, and in that examination also the questions asked. Both the pre-board examination, these questions are asked, and throughout India, it is not in the Delhi region alone, but throughout the India the questions are asked. So today we are going to talk on such a dynamic topic which is going to fetch 10 marks out of this our 40 marks curriculum. Are getting point, dear friends? ठीक है. घर किसको पसंद नहीं है, और अपना घर हो तो मजा ही आता है. लेकिन हम अपने घर के अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज करते हैं. गेट पॉइंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. गेट पॉइंट. सो आज हम घर की बात करते हैं, लेकिन ये घर हमारे अपने घर और इकोनॉमिक्स में इस घर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है. सो लेट अस फाइंड अबाउट डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. हियर इज अ वर्ड. ईच एंड एवरी वर्ड, each and every uh, word is itself has a lot of meaning. So dear friends, while you are listening it, you must have notebook with you. How many students have notebook with them? How many students? ये कथा नहीं चल रही है बेटा. It is not like a katha. It is a involvement. When I am explaining things, get your point? आप केवल सुनोगे, it is not your. You will forget about the class after the class. But when you keep your pen, pencil, whatever it is, pen, paper ready with you, then there you are in a different world. Okay. So our lesson is today, our topic of today is finding the about the domestic or economic territory. Okay, finding about the domestic or economic territory. So why it is important to know? This is a very natural question which a very curious mind can will always ask. So why it is important to know? For that, dear friends, we will discuss in later classes that there are certain aggregates which are part of national income accounting, and many of you are aware of that.
For example, the aggregates like National Income Accounting aggregates like GDP, NDP, GNP, NNP. Okay, these these aggregates, that is GDP, gross domestic product, NDP, net domestic product, GNP, gross national product, NNP, net national product. These are calculated on market price as well as on factor cost. So these aggregates, if you want to know, suppose if you are interested to know about domestic income, gross domestic income at a market price, then you should know GDP MP. Okay, unless and until you are not sure about domestic concept, unless until you are not sure about the national concept, so how you can find out about the GDP and GNP? And if you are not knowing these GDP and GNP, then NDP and NNP is always difficult for you. To understand the domestic concept, we need to know about concept of domestic territory. So is it clear, dear friends? Is it clear? Tell me. Your response will motivate me. Okay? Newton's law, every action has equal and opposite reaction. Okay? So if you are, I am throwing the expecting the remarks from you, you should do. So dear friends, according to UN, है ना, एक होमोजीनियस पैटर्न होना चाहिए अकाउंटिंग का। कैन यू पॉइंट? अगर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन इज फॉर ऑल, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। हमारा देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इट इज कॉमन टू ऑल। तभी तो हम कहते हैं कि हमारा देश डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इफ यू गो टू द अदर कंट्रीज, महिलाओं को राइट्स नहीं है बहुत सारे कंट्रीज में। कैन यू पॉइंट? बहुत सारे जहाँ इलिटरेसी है, जहाँ पर समाज में बराबरी नहीं है, वहाँ राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ देखो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, वो क्या इशू बताता है? व्हाट इट इंडिकेट्स दैट देयर इज इक्वलिटी। सिमिलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यूएन इंटरफेरेंस, जैसे डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हेल्थ के ऊपर एक थ्रू आउट एक गाइडलाइंस इशू करता है, दैट इज एप्लीकेबल टू थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिमिलरली यूएन एजेंसी है, यूएन 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 के अनुसार यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यूएन ने भी कहा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होना चाहिए एंड एवरी कंट्री मस्ट फॉलो इट, सो दैट वी कैन रियली अंडरस्टैंड दैट कि किस कंट्री का कितना इनकम है, एंड देन वी कैन क्लासिफाई इनटू द डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, बैकवर्ड कंट्रीज। वो तो अब डिफिनेशन हट गया यूएन की डिक्शनरी से, बैकवर्ड और डेवलप्ड कंट्रीज का। तो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज दो ही क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी के अनुसार जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बुरुंडी है, किगाली है, मलावी है, ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ सुल्तान है, सब आपको ऐड देते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि किस देश की कितनी इनकम है, और इसमें यूएन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू यूएन, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी, जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, administered by government within which person, goods and capital circulate freely। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी। कैसी टेरिटरी है? कैसा क्षेत्र है? जोग्राफिकल क्षेत्र है। एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है? वहां पर रूल्स रेगुलेशंस को कौन देखता है? तो बाय गवर्नमेंट विद इन विच, उस एरिया के अंदर, विद इन विच पर्सन, व्यक्ति, गुड्स, सामान, एंड कैपिटल, और कैपिटल जो सर्कुलेट फ्रीली, उस पर फ्रीली सर्कुलेट करता है। पॉइंट। तो ये हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का एक छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा डेफिनेशन, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? जिसको अगर आप देखना चाहो तो देख लो, ये हमारा इंडिया का, मैंने साउथ इंडिया का मैप बनाया, तो ये हमारा एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी सी और बातें हैं, उन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये देखिए, आपका ये डिफिनीशन भी यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय
गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, विच छूट गया है यहाँ पर, विद इन विच पर्सन गुड एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन था। अब आप इसमें देखो आप कि हम थोड़ी सी और बातें करने के बाद हम एक एक करके पॉइंट उठाएंगे। सो द इकोनॉमिक, हम इससे क्या निकल कर आता है कि इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सिंपली अ पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो केवल पॉलिटिकल टेरिटरी की बात नहीं हो रही है। इसमें जो बात हो रही है ना कि केवल पॉलिटिकल टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, उसको हम आगे हम समझाएंगे कि कैसे केवल फ्रीली जो मूवमेंट होता है गुड्स, ये एक जोग्राफिकल एरिया में होता है और ये इकोनॉमिक टेरिटरी का एक हिस्सा है। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब केवल और केवल पॉलिटिकल टेरिटरी होता है ऐसा नहीं। अभी फिलहाल आपको हो सकता है थोड़े समय के लिए लगे, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा नहीं है अब। ठीक है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सिंपली अ पॉलिटिकल टेरिटरीज ऑफ दैट कंट्री। They have some common elements, but still they are conceptually different. ये common element होने की वजह से ही आपको थोड़ा सा confusion होता है, लेकिन इस पर हम अभी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, अभी हमने जो क्राइटेरिया बनाया आपको कि विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, तो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन कह लो ऑफ पर्सन गुड्स एंड कैपिटल, जो स्कोप है डोमेस्टिक टेरिटरी का, उसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और जोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एयर स्पेस। पहला पॉइंट है आपका, आप इसको ध्यान से देखेंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड, ये दो चीजें। तो पहली बात आप देखिए कि अब हम यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, सब लोग का अटेंशन है, सब लोगों का अटेंशन है, बोलो बेटा। हाँ, अब ये देखो बेटा, ये जो आपका मैप जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है? देखो मैं, हाँ ठीक है, हाँ। सॉरी, ठीक है, इसलिए रुकिए। ठीक है, तो ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, अगर आप इस मैप को देखो तो ये आपका ये मैप है ना, इसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री करें, क्या कह रहे हैं बेटा? दिस इज द पॉलिटिकल बाउंड्री। किसी को कोई डाउट? बोलो, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। बोलो भाई, ये क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, बोलो। हाँ, तो इकोनॉमिक टेरिटरी का डिफिनेशन आपको मालूम है कि इज द जोग्राफिकल टेरिटरी। तो ये हमारा ये जोग्राफिकल टेरिटरी है, समझ। अब इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे जो भी करे, चाहे वो यूएसए वाला करे, चाहे वो इंडिया वाला करे, चाहे पाकिस्तान वाला करे, चाहे चाइना वाला करे, कोई भी करे, वो सब हमारे किसके भाग में होंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी का भाग होगा। किसका भाग होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आई बात? बोलो भाई। हाँ, चाहे कोई करे, चाहे पाक, चाहे हो अफगान, चाहे हो अमेरिका, चाहे हो रसिया, चाहे प्यारा चीन, जो भी करेंगे अगर हमारे देश के अंदर है, पहली बात, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, आप ध्यान देना, तो वो नॉर्मली नॉर्मली क्या होगा? वो हमारे जीडीपी, ठीक है, का हिस्सा होगा। पहली बात, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब ये कहा जा रहा है कि क्या यही हमारा जोग्राफिकल एरिया है जो पॉलिटिकल एरिया दिखाई दे रहा है? नो, ये जो पानी वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है ना आपका, ये दिखाई दे रहा है ना पानी वाला, जो कि गर्मी की वजह से उड़ गया, देखो उड़ गया, उड़ गया ना। ठीक है, तो ये पानी वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक। दिस इज ऑल्सो द
बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फिशिंग वगैरह का जो काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जो फिशिंग का जो भी काम हो रहा है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, ये सब एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, वो सब भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। किसी को डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है ना? बोलो, बोलो भाई। हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, डाउट हो तो तुरंत पूछना। इसके अलावा देखो, हमने एक लाइन ऐसे मार्क किया ना, दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, है ना? ये हमने बताने का प्रयास किया कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 नॉटिकल माइल है और वो इंडियन टेरिटरी है, तो यहाँ से गुड्स का मूवमेंट फ्रीली होगा। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक टेरिटरी, लेकिन इसके बाहर दूसरे कंट्री का भी अधिकार है। ठीक है, और इस एरिया में अगर भारत का कोई ऑयल रिग्स है, फिशिंग वेसल्स है, ठीक है, ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इस एरिया में, फ्री एरिया में, ये तो वाटर का एरिया है, ठीक है, जो भी है, अगर इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री बेस है, कुछ भी है, वो सब जिस देश का है वो, जैसे मान लो भारत का यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यहाँ पर कोई वेसल्स मूव कर रहा है, मान लो, तो ये जो शिप होगा यहाँ पर, वो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। समझ में आई बात? बोलो भाई, ठीक समझ में आ रहा है ना? अब इसके अलावा मान लो कि निशांत को, ठीक है, निशांत ने हाँ बोलो अब। हाँ बेटा, माइक ऑफ कर लो बेटा, कोई माइक ऑफ कर लो बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। मैसेज कर दो उसको जरा कि माइक ऑफ कर ले। कर लिया? चलो ठीक है, ठीक है, देखो मैं इस 12th F पिछले साल वाले बैच को भी भेजना था, मैं भूल गया इसको। चलो खैर कोई बात नहीं। चलो, तो ये अगर मान लो कि कोई यहाँ पर मैं बनाता हूँ, डिजाइन बना दूं जरा, आपको पसंद आएगा। मान लो कि ये बोट है, हमारी वाली बोट ऐसी ही बनेगी भाई, है ना? ये शायद दूसरे स्लाइड में होगा, देखता हूँ। हाँ हाँ, बना हुआ है, चलो ठीक। हम्म पहले वाले साइड में क्यों बोट बनाना है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना? इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दिया मैंने, है ना? ठीक है, तो अभी हम इस पर आएंगे भी वापस। फिलहाल ये देखो, दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो तो बेटा। बोलिए, व्हाट इज रिटन? आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? इट इज, हाँ हाँ, देखो सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, भारत, है ना, यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अब यहाँ पर देखो कि एम्बेसी किसकी है, देखो ये यूएस की एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी है? यूएस की एम्बेसी है। बोलो भाई, किसकी एम्बेसी है? यूएस की एम्बेसी है। और ये कहाँ है? ये कहाँ है? बोलो। यस, इट इज इन लोकेटेड इन इंडिया। देखो, एक इंटरनेशनल लॉ होता है और उसके अनुसार कोई भी कॉन्सुलेट, कोई भी एम्बेसी, उसको एक कुछ फ्रीडम्स मिले हुए हैं। तो जिस देश की एम्बेसी होगी, अगर मान लो कि पाकिस्तान की एम्बेसी में भारत में है और उसमें कुछ लोग भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए, भारत की पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती है, उनको पाकिस्तान की सरकार से परमिशन लेना होगा। ठीक है, ये कुछ मिला हुआ है, राइट्स मिले हुए, ठीक है।
तो यूएस की एम्बेसी मान लो अगर इंडिया में है, समझ रही बात। अगर इसमें काम करने वाला व्यक्ति ये श्रीलंका का, यूएस का, इंडिया का, चाइना का, कहीं का भी हो, पाकिस्तान कहीं का भी हो, लेकिन एम्बेसी किसकी है? यूएस की। तो यहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी इस बाउंड्री के अंतर्गत, जहां पर मतलब बाउंड्री मतलब ये यूएस की एम्बेसी के अंतर्गत, वो सब डोमेस्टिक इनकम किसका होगा? यूएस का होगा। किसका होगा? यूएस का होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसी तरह अगर मान लो ये श्रीलंका की एम्बेसी है, ठीक, श्रीलंका है, और यहां पर भारत की एम्बेसी, एम्बेसी किसकी है? इंडिया। किसकी है? इंडिया। और यहां पर काम करने वाला कोई इंडियन हो, कोई श्रीलंकन ही हो, कोई पाकिस्तानी हो, कोई चाइनीज हो, ठीक है, लेकिन यहां जो भी इनकम होगा ये एम्बेसी चूंकि इंडिया की है इसलिए इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इसलिए डोमेस्टिक इनकम का भाग होगा। समझ में आई बात? बोलो भाई, बोलो। अच्छा, ये बताइए कि इंडियन एम्बेसी इन जापान इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? वेरी गुड। कौन बोला? कौन बोला? हु इज दैट? हाँ, आयुषी बेटा, शाबाश। नेक्स्ट, ठीक है, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ, अब अगला जो पॉइंट है कि मैंने जो अभी आपको दिखाने का प्रयास किया था फिर वापस लेते हैं, ये तो आपका हो गया। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो समझ में आ गया ना आपको? अब किसी को डाउट? ठीक है, हम इतनी सारी एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट में ये फिट होना है कि कौन डोमेस्टिक होगा कौन नेशनल होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये जानना जरूरी है, इतना डायग्राम बना के हम कर रहे हैं। अब आ जाओ दूसरे स्लाइड पर। अगर मान लो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बोट है, ये कहाँ की बोट है? इंडिया की बोट है, ठीक है। ये कहाँ की बोट है? ये श्रीलंका की बोट है। इंडिया की बोट इंडिया श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इंडिया श्रीलंका करती है, जैसे पालम दिल्ली कैंट, पालम दिल्ली कैंट, पालम दिल्ली कैंट होता है, मतलब दोनों के बीच में ट्रेवल करती है। शिप किसकी है? इंडिया की है। इस शिप में होने वाली जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रक है, चाय पानी नाश्ता जो भी है, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी किसका होगा? इंडिया का। समझ में आई बात? सिमिलरली if this ship is this ship belongs to श्रीलंका, इसके अंतर्गत जो भी होने वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ श्रीलंका, अगर वो श्रीलंका का है तो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लो कि मान लो कि यहां पर क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, ठीक है। और भारत का जहाज एयर इंडिया वो श्रीलंका और म्यांमार, यहां बना ही देता हूं म्यांमार, नहीं तो कहो कि सर म्यांमार गायब कर दिए हैं और बोल रहे हैं म्यांमार है, म्यांमार है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, तो देखो ये हमारा क्या है? म्यांमार है मान लो, और एयर इंडिया का जहाज श्रीलंका और म्यांमार के बीच में क्या करता है? यात्रा करता है। जहाज थोड़ा बना दूं, मेरी वाली जहाज में बैठोगे ना तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी जहाज तो जहाज ही है। ठीक है, तो ये मेरी वाली जहाज, तो ये किसकी है? एयर इंडिया। किसकी है? एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया का जहाज है, भारत का जहाज है। किसके किसके बीच में यात्रा कर रहा है? ये म्यांमार और श्रीलंका के बीच में यात्रा कर रहा है। बीच में ये क्या है? म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, ऐसा राइटिंग शुद्ध है, लगता है एम्स का डॉक्टर लिख रहा है। तो म्यांमार के बीच में जो म्यांमार एंड श्रीलंका के बीच में ये जो एयर रूट्स है, तो सिंस दिस एरोप्लेन
बिलोंग टू इंडिया, सो यहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी इट बिलोंग टू द इंडिया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? हाँ, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये हमने मिटा दिया इसको, ये समझ में आ गया तो मिटा दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने होगी क्या बातें हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि मैंने एक टूल बनाया। टूल क्या है? ये देखो है ना, ये हमने टूल बनाया। ये क्या है? ये फ्लैग है। ठीक है, तो जिस देश का भी फ्लैग हो, जैसे एयर इंडिया का एरोप्लेन है, तो दैट कंटेन्स द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो जिस देश का फ्लैग हो वो उस देश की इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। एक बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको। यहाँ पर ये फ्लैग हो वो किसका है? ये है इंडिया का, तो इकोनॉमिक टेरिटरी यहाँ क्या होगी? वो इंडिया की होगी। यहाँ फ्लैग किसका है? श्रीलंका का, तो इकोनॉमिक टेरिटरी किसका होगी? डोमेस्टिक इनकम किसका होगा? वो श्रीलंका का होगा। समझ में आई बात? बोलो भाई। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, तो ये फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लैग वाला, ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, ये फ्लैग है। ठीक है, ये फ्लैग, FLAG, फ्लैग। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलो। तो सिर्फ हाँ, तो अब मान लो कि ये इंटरनेशनल वाटर है, दोनों तरफ ड्रॉ कर लो। ये इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल वाटर, आई वाटर, इंटरनेशनल वाटर। अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑयल रिग्स है, जहां पर हम कुआं बनाकर वहां पर तेल निकालने का काम करते हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल वाटर क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर कोई देश, किसी देश का नहीं है ये कॉमन है, यहाँ कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई है तो जिस देश का ये ऑयल रिग होगा, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि इंडिया का है, तो ये देखो इंडिया हमने एरो मार्क किया है, तो ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा, ये अब उसी बेस पर सपोज ये रसिया है, R फॉर रसिया। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्यारा देश, छोटा सा देश, प्यारा देश जापान। ठीक है, जापान मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, इसलिए कि जापान के लोग बड़े ही राष्ट्रवादी होते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द कंट्री। ठीक है, तो जापान है। अगर मान लो रसिया और जापान के बीच में एरोप्लेन सर्विस है, और ये एरोप्लेन किसका है? इंडिया का है। किसका है? इंडिया का। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये बताओ कि जो इंडिया का ये मैप है, सॉरी, इंडिया का ये एरोप्लेन है, तो ये किसके, यहाँ पर जो भी इनकम होगा किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी? इंडिया की। वेरी गुड, शाबाश, इंडिया की मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए भाई। हाँ, इसी तरह मान लो कोई फिशिंग वेसल है, ठीक है, जहां पर आप फिशिंग करते हो, हम्म, तो वो भी उसी देश का माना जाएगा जिस देश का है वो। फिशिंग वेसल्स जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय, है ना, ऑपरेटेड बाय। ठीक है, क्या किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? बाय रेजिडेंट ऑफ इन इंटरनेशनल वाटर, जैसे हमने इंटरनेशनल वाटर को दिखाया, है ना, ये इंटरनेशनल वाटर में कोई भी काम होता है, ठीक है, तो वो जिस देश का होगा, जिस देश के जो डिसीजन में होगा, वो फिशिंग वेसल वो होगा। अभी जस्ट मैंने चर्चा की। ठीक है, जैसे फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर, ये इंटरनेशनल वाटर इसके अंतर्गत। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, इंडियन ओशंस ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट, इतने कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत हुआ?
हाँ, बोलो भाई। इतने कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है कुछ? बोलिए। हेलो, 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 दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है? कोई बोल रहा है यस सर? कौन बोला? अच्छा नो सर, ओके, ओके। हाँ, बोलो। हाँ, बोलिए बेटा। अच्छा, वो फ़ायदा है या नहीं है, वो तो हम एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, है ना? अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, वो फ़ायदे-नुकसान की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फ़ायदा कैसे नहीं है, अब थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लेकिन फिर भी, देखो मान लो कि यूएस की एम्बेसी है अगर इंडिया में, हाँ? तो यूएस से क्या करता है, इंडिया के बाहर से जो भी लोग आएँगे, वो उनको यहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी। ये कैसे लोग हैं, एक कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है ना, वहाँ पर वो अपने नागरिकों को फैसिलिटेट करता है, कैसे लोग हैं, कैसे मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ टेररिस्ट माइंडेड लोग हैं, तो एक कंट्री की अपनी रिलायबिलिटी होती है। एक तो छोटा-सा फ़ायदा मैंने बताया, ठीक है? इंडिविजुअल की रिलायबिलिटी कम होती है, कंट्री की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको जितने भी पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम तो एम्बेसीज़ का ही काम होता है बेटा, ठीक है? अगर आप चाहेगा निशांत या चाहेगा ये स्नेहा या आयुषी, आरुषि, नंदनी कोई भी मेरा बच्चा अगर चाहेगा कि अमेरिका चले जाएगा तो चले जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है? उसको वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह सब बनवाना पड़ता है। क्योंकि आप कहीं जा रहे हो तो उस देश के लिए आप समस्या भी तो बन सकते हो। जैसे अमेरिका में जो अटैक हुआ, हाँ? तो उस अटैक के बाद जिन देशों से उनका संबंध था, तो वहाँ के लोगों को अमेरिका ने पूरा स्क्रूटनाइज़ किया। किया कि नहीं किया? तो ये उस देश के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है बताओ? कि हम अपने देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जैसे मान लो कि अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पर आप निशांत सर्विस कर रहा है, नंदिनी सर्विस कर रही है, सहीन सर्विस कर रहा है या कोई भी हमारा बच्चा सर्विस कर रहा है, तो उनको वो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ पर पेपर वर्क होंगे बहुत सारे, वो सब उन सब कामों को करने के लिए जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उन कामों को करने के लिए, ठीक है? आर यू गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। हाँ, तो फायदा तो है ही है, ठीक है? हालांकि ये हमारे उसका पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी चलो क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है? तो अब हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बोलो भाई, बोलिए।